Hello everyone, I welcome you all to Avlokan IAS. So today we are going to start our series on answer writing. Basically, we are going to take a pillared approach about how to write good answers in UPSC CSE mains exam. So this series will not be about content, but the way you think while you see a question and how you structure it into various dimensions along with good introduction and conclusion. So basically, we are taking a holistic approach about how to write a good answer. Okay. So let me quickly give you a structure of this video about how we are going to proceed. तो पहले हम सारे कंपोनेंट्स देखेंगे आंसर राइटिंग के एक अच्छा आंसर लिखने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, लाइक कॉन्टेक्स्ट, कंटेंट, देन डायग्राम्स या फिर हाउ टू ऐड कीवर्ड्स, हाउ टू ऐड वैल्यू एडिशन, हाउ टू ऐड एग्जांपल्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन, सो ऑन एंड सो फॉर्थ. नेक्स्ट, लेट्स स्टार्ट. First of all, what is needed to write a good answer? That is the basic necessity, right? So, what we do need is context, content, facts and data. Of course, you cannot prove about your argument without mentioning proper facts and data, right? Vocabulary, diagrams, structure to meet the demands of the question, right? So, these are the things that we basically need to think of before writing an answer. So, as soon as you see the question, you must be able to divide the question into 3 parts or 2 parts according to the needs of the question and address it, so that you can write your answer in limited time frame as well as in limited words. Then, what is the most important things to take care of while writing an answer? First of all, it is the need of the question. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारा पढ़ते हैं, जिनके पास बहुत नॉलेज होता है ना, और मतलब आप बस टॉपिक बोलो एंड दे आर रेडी विद द फैक्ट्स, कमिटीज, डेटा एंड एवरीथिंग. और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका रटना अच्छा नहीं होता बट उनका प्रेजेंटेशन पार्ट अच्छा होता है ना. तो आपने देखा होगा टॉपर्स कॉपी में जनरली जो लोग हैं वो बहुत लिमिटेड और बहुत ज्यादा जनरलिस्टिक आंसर लिख रहे हैं, बट स्टिल दे आर एबल टू सिक्योर गुड मार्क्स. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई? दिस इज द पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ द क्वेश्चन. हमें वही लिखना है जो हमसे पूछा गया है. एक्सेसिवली वर्ड्स को बढ़ाना या फिर जो चीज रेलेवेंट नहीं है उसको लिखना will not add up to marks. It will only add up to our misery, to be honest. Okay, so जितना पूछा है उतना लिखना है, अच्छे से लिखना है. That is understanding the context and content of the question. अब किसी ने पूछा है अगर child labor, what is child labor and how it is detrimental to the society. तो अगर हम child labor की जगह child marriages या फिर उसको constrict कर देंगे अपने introduction को ही, then how will we able to write a good answer, है ना? So we need to take care of these things. Then understanding the keywords of the question. What do you understand by keyword itself? That is the big thing, right? कुछ लोग समझ रहे होंगे keyword means question में पूछा क्या गया है, I mean the topic. जैसे हमने अभी example लिया child labor का. No, that is the key demand of the question. The keyword is explain, that you have seen in different type of question, right? Explain, discuss, critically analyze, illustrate. We will take a different सेशन ऑन दीज कीवर्ड्स एक्सप्लोरेशन, क्योंकि क्या है ना, ये चीज समझाना अपने आप में एक टॉपिक है. तो हमें अगर इस चीज को अच्छे से समझना है तो वी नीड टू टेक अ होलिस्टिक अप्रोच टू अंडरस्टैंड, राइट? सो अंडरस्टैंडिंग द कीवर्ड, मैं आपको जैसे एग्जांपल देती हूँ. डिस्कस और एक्सप्लेन, अगर ऐसा कीवर्ड आता है देन व्हाट यू हैव टू राइट? इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट का एक्सप्लेनेशन. चलो कंसेप्ट हमने जैसे लिया इन्फ्लेशन. ओके, नाउ इफ अ क्वेश्चन कम्स, डिस्कस द कॉजेस ऑफ inflation in India. Okay. Then how we have to write? We have to introduce the concept of inflation itself first, because here the keyword is discuss or explain. So introduction should be consist of inflation. अब एक और बात एक तो ध्यान रखनी है कि इंट्रोडक्शन जो होगा वो हमारा 3 to 4 लाइन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वी आर एक्सीडिंग द वर्ड लिमिट. क्या होता है ना कि अगर हमारा इंट्रोडक्शन बड़ा हो जाता है देन जो अदर डिमांड्स होती है ना क्वेश्चन की, वी आर नॉट एबल टू फुलफिल द डिमांड्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स. हम जस्ट पेज फिल अप कर रहे होते हैं या फिर उसको कहीं सेट कर रहे होते हैं, राइट? कि अब जगह नहीं बची तो चलो इसको ऐसे हम फ्लो चार्ट में बना के लिख देते हैं. द एग्जामिनर इज स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड हाउ यू आर एबल टू मैनेज द राइटिंग ऑफ योर आंसर. ओके, सो यू नीड टू टेक दीज थिंग्स इन पॉइंट्स. सो देन इफ वी आर राइटिंग अबाउट कि इन्फ्लेशन इंडिया में बढ़ रही है, देन उसको सपोर्ट करने के लिए हमें क्या लगेगा? डेटा लगेगा, फैक्ट्स लगेंगे कि किस रेट से बढ़ रही है, क्या रीजन है बढ़ने का, है ना? So these things should also come into the picture. Then after, if we are writing challenges, कि यार अब बढ़ रही है, ये रीजंस है, इनसे बढ़ रही है ना? ये इश्यूज हैं, इनके कारण बढ़ रही है. So always remember, if you are writing challenges, then you also need to
कंसिस्ट वे फॉरवर्ड। ओके, क्योंकि आप ये नहीं दिखा सकते ना कि आपका जो ब्रेन है दैट नीड्स टू बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड rather than problem finder. As a bureaucrat, what they are expecting you to be, they are expecting you to give some solutions for the existing problems in administration as well as economy in various sectors, right? So you need to show that you are a solution oriented person. So this will be the way forward for your answer. Second, अगर आ गया critically evaluate or analyze, then what you will do? Introduction, ऐसे introduction and conclusion तो हर आंसर में लिखने हैं, but introduction में हम क्या बताएंगे? Introduction should consist of the problem or challenges that the topic is asking about. हमारे introduction में definition या जो data रहेगा, है ना, वो same रहेगा. जैसे for example, अगर ये आ गया critically evaluate that inflation के लिए जो गवर्नमेंट ने मेजर्स करे हैं दे आर नॉट अप टू मार्क एंड दे आर कॉजिंग अ प्रॉब्लम इन द इकोनॉमी, तो हमें क्रिटिकल इवैल्यूएशन में उसको क्रिटिकल वे में दिखाना है. तो अंडरस्टैंडिंग like the tone of the introduction should be like according to the keyword of the question. So we will go on with the introduction, then arguments for. First of all, we have to write arguments for. Always begin in a positive tone and always end with a positive tone. So arguments for that, okay, government has done something and they are on a positive side, that they are causing the growth only. Then we are going for the arguments against. So we have to write the challenges that the question is being asking. Okay, then again conclusion. Conclusion क्या होगा हमारा? Futuristic और क्या? Way forward type. Reflecting the policy goals. Okay, to achieve inclusive growth, to do this type of thing. So next आएगा compare and contrast. Compare and contrast में कैसे question लिखना है? Compare and contrast basically needs us to write differentiation. Okay, differentiation means कैसे? Compare and contrast about emergency or precedent rule. Then what you have to do? You have to divide the page into two, right? This way, and you have to write your points. So this is the approach you're gonna take. So ये है ना, we'll take a separate session on this to like make you understand these things. Okay. Now moving on to the next part, structuring the question into subparts. मैं हमेशा यही एडवाइस करती हूँ जो भी आंसर राइटिंग के सेशंस होते हैं, प्लीज डिवाइड द क्वेश्चन इनटू 2 पार्ट्स. अगर वो 10 मार्कर है ना, तो इंट्रोडक्शन पार्ट 1, पार्ट 2, डायग्राम डालने हैं तो वो डालिए, देन व्हाट कंक्लूजन. इफ चैलेंजेस लिखे हैं राइट वे फॉरवर्ड, देन कंक्लूजन. ओके, एंड इन 15 मार्कर डिवाइड द क्वेश्चन इनटू 3 पार्ट्स. ओके, so it will take you around 10 to 11 minutes, and for the 10 marker ideally you should be writing within 7 minutes. हमें टाइम, स्पेस और कंटेक्स्ट तीनों को साथ में लेके चलना है इफ यू वांट टू कंप्लीट योर पेपर विथ रेलेवेंट आंसर्स. ओके, अब नाउ नेक्स्ट थिंग वी आर गोना सी ब्लूप्रिंट ऑफ द आंसर. ब्लूप्रिंट क्या होगा आंसर का? अच्छा, ब्लूप्रिंट क्या कहलाता है? ब्लूप्रिंट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर, रफ स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर. तो ब्लूप्रिंट किसी आंसर का क्या होना चाहिए? आइडियली जैसा भी मैंने बताया आपको, द इंट्रोडक्शन इट शुड कंसिस्ट ऑफ 3-4 लाइन्स. ओके, अगर एग्जाम्पल की नीड है तो यहाँ एग्जाम्पल डालो. देन देयर शुड बी हेडिंग नंबर 1, है ना, दैट शुड बी enclosed in a box. Then you'll write your points, about 4 to 5 points you will write in points manner. This is the manner we should be developing. Okay, this will help you to present your content in a better way. और हम ट्राई करेंगे कि 5 में से कम 3 जगह we put examples to like elaborate our argument. Then इसके बाद क्या आएगी? हेडिंग नंबर 2. थोड़ा स्पेस की कॉन्स्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, बाकी आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके, हेडिंग नंबर 2. हियर यू विल राइट योर आर्ग्यूमेंट्स. ओके, दिस शुड बी ऑन द नेक्स्ट पेज. देन यू विल राइट व्हाट? कंक्लूजन. It should be your ideal blueprint of the answer. Okay, so you need to take this in your notes. Again, the introduction should be contextual and the conclusion should be showing the scope. For example, अगर modern Indian history में GS1 में कोई question आता है कि जो Battle of Plassey थी उसका significance क्या था, and about relatively Battle of Plassey, then the introduction क्या बताएगा उसका context कि Battle of Plassey क्यों हुई थी, कहाँ हुई थी, and what were the circumstances, right? Then we will write on to the demands of the question. जैसे भी heading हमें divide करनी होगी according to the question, and then conclusion में हम क्या लिखेंगे? Paved the way forward for.
है ना, मतलब इसका इफेक्ट क्या हुआ आने वाली फ्यूचर मूवमेंट्स पर। ओके, यू हैव टू राइट दिस, जैसे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज वन ऑफ द फैक्टर, so you have to write this in the conclusion to write a good conclusion। ऐसे अगर जीएसटी का कोई कंक्लूजन होता है तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि जो भी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स है या फिर एसडीजीज है ना, ये हमें लिखना चाहिए, या फिर आप बेस्ट प्रैक्टिसेस भी लिख सकते हो। ये सब क्या आएगा आपके वैल्यू एडिशन में आएगा। ओके, सो यू नीड टू टेक दीज थिंग्स आल्सो। नाउ व्हाट अबाउट द मेन थिंग ऑफ द आंसर, दैट इज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में मैंने जैसे आपको बताया ब्लूप्रिंट में हमें सब हेडिंग्स अच्छे से बनानी है ना, सब हेडिंग्स को बॉक्स में एनक्लोज करना है। पहले जनरली जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में या फिर कहीं भी इवैल्यूएशन होते थे उसमें ये बोला जाता था कि बॉक्सेस मत बनाओ बिकॉज इट टेक्स स्पेस और समथिंग, बट आफ्टर लाइक द इंटेंस कॉम्पिटिशन एंड एवरीथिंग, people have started making boxes and improving their presentation in a very good way, so you need to do that because कंपटीशन में रहने के लिए जो सब कर रहे हैं वो तो हमें bare minimum करना ही है, so you need to make boxes, right? उसके बाद जो आपके बुलेट पॉइंट्स होंगे, बुलेट पॉइंट्स कभी भी ऐसे मत डालो, हमेशा पुट नंबर्स इन द बुलेट पॉइंट्स, बिकॉज ये क्या दिखाता है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट देता है। ओके, साइकोलॉजिकल इफेक्ट इन द सेंस कि आपने अगर 10 मार्कर है तो 10 मार्कर में आपने इतने पॉइंट्स लिखे हैं, दैट यू नीड टू शो टू द एग्जामिनर। अगर वो पूरा आंसर ना पढ़ के भी तो ऊपर से देख के मार्क्स दे रहा है, तो अगर आपने नंबर्स लिखे हैं ना, ही विल अंडरस्टैंड दैट यू हैव एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, राइट? सो यू नीड टू डू दैट आल्सो। देन वी कम टू कीवर्ड्स और वैल्यू एडिशंस, वोकैबुलरी वी कैन कॉल। जैसे इधर मैंने एक एग्जांपल दिया है जीएस1 का, सोसाइटी से मेनली। अब सोसाइटी में हम कैसे कैसे वर्ड्स यूज कर सकते हैं, दैट इज स्पेसिफिक टू द सोशियोलॉजी सब्जेक्ट, है ना, जैसे एक्लचरेशन, संस्कृताइजेशन, एसिमिलेशन, अर्बनाइजेशन। दीज टर्म्स मेक योर आंसर मोर अट्रैक्टिव, मोर लेजिबल एंड गेट यू अ लेवरेज ओवर अदर पीपल, बिकॉज जो आंसर चेक कर रहा है ना, द पर्सन इज अ रीडेड मीन्स नॉलेजफुल पर्सन, राइट? तो उसको अगर अपने फैमिलियर टर्मिनोलॉजी दिखेगी, he will give you answers, sorry, he will give you marks, that is the thing you need to develop। तो अब हम कैसे सारे सब्जेक्ट से ये कीवर्ड्स निकालेंगे? फॉर दैट ChatGPT comes to the rescue, whatever terminology you need from each subject, you can give the command on ChatGPT and you will get it easily। Okay, like play smart, you will get it। Being relevant to the question is the next thing, addressing the demand in the limited space and time that we have already talked about, कि हमें कैसे उसको अच्छे से स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। देन अगेन वी कम इनटू वैल्यू एडेड कंटेंट। क्या होता है, जो बेसिक्स होते हैं वो सब पढ़ रहे होते हैं, जो जनरल हमारे सोर्सेस है उनसे सब पढ़ रहे होते हैं, कोचिंग मटेरियल उठा लो या फिर स्टैटिक बुक, कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा लो। हमें अगर अपना आंसर बेटर बनाना है, देन व्हाट वी हैव टू डू, हमें वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। और जनरली वैल्यू एडिशन कब होता है, व्हेन यू आर इक्विप्ड विद द सिलेबस एंड यू हैव रेड द कंटेंट और आपने प्रॉपर नोट्स बना लिए उसके, है ना, तब हम करते हैं वैल्यू एडिशन। अब वैल्यू एडिशन में क्या क्या होना चाहिए? फैक्ट्स हो सकता है, ये GS2 GS3 में आपके काम आएंगे, जजमेंट्स GS2 में काम आएंगी, और आजकल लोग GS4 में भी जजमेंट्स यूज करने लगे हैं, है ना, तो यू कैन डू दैट। कमिटीज अगेन GS2 में काम आएंगी। बेस्ट प्रैक्टिसेस किसी स्टेट में, जैसे मेघालय है, मेघालय का सोशल ऑडिट फेमस है, यू कैन पुट दैट। एक जल सहेली इनिशिएटिव है, अगर आपने कभी सुना हो तो, ये MP के बुंदेलखंड में फेमस है, यू कैन ऑल्सो पुट इट इन योर आंसर। ये क्या होता है ना, ये चीज हमारे आंसर को और रेलेवेंट बनाती है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। देन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स क्या, अगर फॉर एग्जाम्पल PM आवास योजना पे क्वेश्चन आ गया, देन व्हाट यू विल पुट पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स में, कि फॉर प्रॉपर हाउसिंग टू ऑल, okay, for inclusive growth you can also write that। SDGs, you have to learn SDGs, that you should keep in your mind। SDGs के बिना most of our answers are not even complete, और direct questions आते हैं SDGs पे, तो if you are following the PYQ, you have to learn the SDGs anyway, okay, please keep this in your mind। Reports, various international reports we can use, जैसे WHO के projections होते हैं, IMF के projections होते हैं, है ना, we can use these reports। current affairs, न्यूज़पेपर से आप डेटा निकाल सकते हो। देखो, while reading the newspaper, if you know the syllabus कि कहाँ क्या पूछा जाता है, और आपको कोई ऐसी हेडिंग दिख गई that you can
पुट इट इन योर आंसर, है ना, एज अ बेस्ट प्रैक्टिस, एज एनीथिंग. जैसे आज के न्यूज़पेपर में आई रेड अ थिंग, कम्युनलाइजेशन के ऊपर था कि अगेन अ टाउन इज डिवाइडेड इनटू ग्रीन एंड saffron. So these things now, these makes your answer more attractive. You can write these things in your answer directly. Quotes हो गए, है ना, quotes भी हम डाल सकते हैं. जैसे environment का question आया, so environment के question में we can put Gandhi's quote that there is enough for everyone need but not for everyone greed. But याद रखो quotes आप डालो conclusion में mainly, that will make your conclusion very attractive. Okay. So this was the thing that we can do to structure our answer well. Now, as I have told you, what we need to do after this session is revision. Revision of the basic concept is very important. You need to have one-pager notes of every topic to write a very good answer. Practice is needed. Practice in the sense, if you are not even writing the answer, just brainstorm the question. Okay. It is needed to leverage and organize your thoughts in mind according to the needs of the question. So please do brainstorming for at least 2 to 3 questions every day, solely based on PYQs. And if you are writing the answer, please make sure that you show it to your peers or teachers or mentors, whoever is guiding you. Okay? It is very good to have a feedback because आपको नहीं पता ना कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, है ना, कोई आपको देखेगा, गाइड करेगा, तभी यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि लैक कहाँ हो रहा है. तो इन दिस सेशन हमने पढ़ा बेसिक्स ऑफ आंसर राइटिंग, उसके कंपोनेंट्स और बाकी सब चीजें कि क्या एक आंसर में होना चाहिए. अब इस नेक्स्ट सेशन में वी आर गोइंग टू सी मॉडल आंसर आइदर फ्रॉम अ टॉपर्स कॉपी और वी कैन राइट इट फ्रॉम अवरसेल्व्स. ओके, तो हम देखेंगे कि जो भी हमने पढ़ा उसको आप इम्प्लीमेंट कैसे करना है टू गिव यू अ वाइडर अंडरस्टैंडिंग. ओके, so I hope you like the video and please जो भी आपकी queries हो या demands हो, you can write in the comment section so that we can work on it. Thank you. जय हिंद.